चिन्मय सद्गुरवे नमः। Hariom. Thank you, Komal. What a wonderful explanation about Swaraj and Dheeraj. See how beautifully Swami Tejogananda ji had written the conversation between Ram ji and Vibhishan ji. तो जैसे राम जी बताते हैं कि उनके धर्म के जो रथ हैं उनके पहिए हैं स्वराज और धीरज, वैसे ही राम जी बताते हैं कि जो फ्लैग्स हैं, जो रथ के फ्लैग्स हैं, वो किससे बने हैं. सो आई आस्क यू दैट व्हाट आर फ्लैग्स, व्हाट फ्लैग्स इंडिकेट्स, फ्लैग्स क्या है. सो फ्लैग्स आर द बेसिक, फ्लैग्स बेसिकली इंडिकेट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, identification of a country, identification of an organization, identification of a political party. Like nowadays, political parties have their flags on their cars. Similarly, the chariot of war also have two flags on it. The one above is called Dhwaja and the below it another is called Pataka. तो श्री राम जी बताते हैं कि उनके फ्लैग्स जो है, they were not made up of normal clothes like other chariot, but they are made up of truthfulness, that is satya, and sheel, that is character. And one who has firmness in these two will be ever victorious and safer in life. Satya, sheel, drit, dhwaja, pataka. What is satya? What is truthfulness? Satya क्या है? So holding to your intellectual convictions, that is truthfulness. One must be ready to consider or reconsider thousands of times before selecting any idea or ideal, but after accepting that idea or ideal, he must hold it throughout his life. That is truthfulness. जब हम किसी भी कन्विक्शन को पकड़ के रखते हैं हमेशा जीवन भर, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, that is truthfulness, that is सत्यम. तो जब कन्विक्शन की बात आती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र आते हैं. उन्होंने धर्म को अपना कन्विक्शन बनाया. धर्म के रास्ते पे उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई. उन्हें खुद को बेचना पड़ा, उन्हें अपनी वाइफ को बेचना पड़ा, उन्हें अपने बेटे को बेचना पड़ा, लेकिन तब भी उन्होंने अपने कन्विक्शन को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा. दैट इज ट्रुथफुलनेस. सो आई टेल यू स्टोरी. वंस इन अ गुरुकुल व्हेन Guru Dronacharya was teaching a lesson on speaking truth, he taught everyone that never tell a lie, always speak truth. So he went to ask everyone that what you have learned from the lesson. So more or less everybody has told him that Gurudev, we learned that never tell a lie, always speak truth. But Yudhishthira replied that Gurudev, I'm sorry, I have not learned the lesson yet. तो सारे अमेज हुए कि गुरुदेव जो युधिष्ठिर है ये इतना ब्रिलियंट चाइल्ड है, इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये तो सारे लेसन ऐसे चुटकियों में समझ लेता था. सो द वेरी नेक्स्ट डे गुरुदेव अगेन आस्क्ड दैट व्हाट यू हैव लर्न माय चाइल्ड. तो युधिष्ठिर ने फिर वही जवाब दिया गुरुदेव कि सॉरी गुरुदेव, मैंने अभी भी वो लेसन सीखा नहीं है. दिस कंटिन्यूज फॉर अ होल वीक, बट आफ्टर वन वीक when गुरुदेव अगेन आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, व्हाट यू हैव लर्न माय चाइल्ड. तो युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया दैट गुरुदेव, आई हैव लर्न द लेसन एंड द लेसन वाज नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ. तो जब ये सब चीज हो रहा था, व्हाइल दिस वाज हैपनिंग, यू नो दुर्योधना, ही वाज नोटोरियस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. वो हमेशा मजाक उड़ाने में लगा रहता था. तो ही स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ युधिष्ठिरा. हियरिंग दिस ही टोल्ड दैट ब्रिलियंट आंसर प्रिंस युधिष्ठिरा, यू हैव लर्न दिस सिंपल सेंटेंस इन अ होल वीक. तो युधिष्ठिर ने बहुत शांत होकर जवाब दिया that yes my dear younger brother, it took me a whole week to get out of the clutches of lies. For me speaking truth is not just speaking truth. For me speaking truth is not even a single thought of lie should not come in my mind. एक झूठ का थॉट भी आना अगर मेरे मन में वो आ रहा है तो मेरे लिए वो सच बोलना नहीं है. The first day when Gurudev taught me that lesson, I was surrounded with many lies. My mind was surrounded with many lies. The very next day, the number of lies reduces. But after practicing a whole week, I can say that my mind is free from lies. And I will practice that throughout my life. And I will never tell a lie and always speak truth. तो उस दिन के बाद से, from that day, हमने हमेशा युधिष्ठिर को एक सच बोलने का एग्जाम्पल दिया कि उसने कभी भी झूठ नहीं कहा पूरे जीवन में.
दैट इज होल्डिंग टू योर कन्विक्शंस, दैट इज ट्रूथफुलनेस। तो जब राम जी ने भी अपने धर्म को, अपने वैल्यूज को अपना कन्विक्शन बनाया और उसे पूरे जीवन भर उन्होंने अपना पाया, इसलिए दैट्स व्हाई हिज फ्लैग वाज मेड अप ऑफ ट्रूथफुलनेस, सत्यम। द अदर component was शीला। So what is शीला? शीला is good character, good conduct, good integrity. So Shri Ram was embodiment of good character. तो जब उन्हें बताया गया कि तुम राजा बनने वाले हो अयोध्या के, उनके पिता ने कहा, और अगले दिन उनके पिता कहते हैं कि राम तुम अब बन जाओगे 14 वर्ष के लिए वनवास। तो जब उनकी माता कौशल्या ने सुना कि राम राजा बनने वाले हैं, तो बहुत एक्साइटेडली, बहुत खुश होकर के अपने बेटे के पास गई और कहती है कि राम तुम राजा बनने वाले हो। आई एम श्योर कि अगर मैं होता या हम में से शायद कोई होता वहां पे, तो बहुत गुस्से में आता कि कौन राजा, क्या राजा, मेरे पिता तो मुझे 14 साल के लिए वनवास भेज रहे हैं। दिस इज नॉट गुड कैरेक्टर, दिस इज नॉट शील। श्री राम ने उन्हें बहुत प्यार से, बहुत स्वीटली रिप्लाई किया दैट माता, मुझे मेरे पिता ने पूरे वन का राजा बना दिया है। See how beautifully he answered her. That is Sheila, that is good character. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि शील इंपॉर्टेंट क्या क्यों है, वाई शील इज इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर लक्ष्मी जी ने राजा प्रहलाद को दिया था। राइट, धर्म सत्यम तथा वृत्तम बलम चैव तथाप्यहम शील मूला महाप्राज्ञा सदा नास्त्यत्र संशय। धर्म दैट इज राइटियसनेस, सत्यम दैट इज ट्रूथफुलनेस, वृत्तम दैट इज गुड बिहेवियर, strength, balam, tathaapyam. Pyam means that Lakshmi ji herself. Lakshmi ji herself means wealth, right? So इन सबका मूल क्या है? शील मूल है। इन ये सारी चीजें तभी आएंगी जब हमारे पास एक गुड कैरेक्टर होगा, हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा। बिना कैरेक्टर के ये सारी चीजें कुछ भी नहीं आएंगी हमारे पास। That's why character is important. You know, character is a brand of person. It is a flavor of personality. जैसे स्वामी विवेकानंद जी, he was fearless, and fearlessness is his character. Fearlessness is his brand. Dr. APJ Abdul Kalam, whatever he did for his country. Patriot, a true patriot. That is his character. Bhagat Singh, a courage. Netaji, a true leader. That's why character is important. So someone very beautifully said that if wealth is lost, nothing lost. If health is lost, something lost. But if character is lost, everything lost. तो एक स्टोरी है, एक लड़की होती है एंड शी वाज वेरी डिस्टर्ब फ्रॉम हिज लाइफ, अपने प्रॉब्लम से बहुत परेशान होती है। तो अपनी माँ के पास जाती है एंड शी टोल्ड एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ, और उसकी माँ बहुत केयरफुली सुनती है उसकी बातें। फिर उसे वो किचन की तरफ ले जाती है, फिर कहती है कि 3 पॉट लो और एक पॉट में कैरेट, एक पॉट में एग और एक पॉट में कॉफी बीन डाल और उसे बॉईल करने के लिए छोड़ दो। तो वैसा ही करती है। फिर 10 मिनट बाद जब वो बॉईल हो जाता है तो फिर उसकी माँ कहती है कि अब तुम देखो कि क्या क्या है। तो वो देखती है, वो जब कैरेट को फील करती है तो बहुत वो वीक सा, सॉफ्ट सा और मशी सा हो जाता। फिर वो एग को देखती है तो वो भी जब पील करते तो वो भी अंदर से हार्ड हो गया था। बट कॉफी बीन ने क्या किया था कि पानी को ही कॉफी बना दिया था। तब उसकी माँ कहती है कि लाइफ में भी ऐसे 3 तरह के लोग होते हैं, एक कैरेट और एग की तरह। जैसे एक कैरेट की तरह होते हैं, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई भी डिफिकल्टी आती है लाइफ में, तो वो ऐसे तो हार्ड होते हैं बट प्रॉब्लम के साथ साथ वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। फिर दूसरे होते हैं एग की तरह, जो पहले तो बहुत अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, बाहर से हार्ड कितने वो अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, बट जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, तो उसके साथ साथ अंदर से भी हार्ड हो जाते हैं। बट एक तीसरे टाइप के पीपल होते हैं, कॉफी बीन की तरह, जो उस हार्डशिप को अपने आप को एलिवेट करने के लिए यूज करते हैं उस हार्डशिप को, ताकि ग्रेटनेस अचीव कर पाए। सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम, अ कैरेट, एग और अ कॉफी बीन। So thank you. I would like to call my friend Gokul, and he will talk
on the two horses of that righteousness, chariot of righteousness, Bal and Vivek. Hari Om.